Hello, good morning, students. Welcome back to the lesson here. Today, in your 10th lesson, Organs of Government, we are going to study with the new concept of Prime Minister. Actually, we have already studied, but not in a complete details. Now, let us understand what is the role of Prime Minister and how he or she, whoever the person is, gets the powers and how to rule the country. The Prime Minister actually is the real head of the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के मेन हेड होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द पार्टी आल्सो. व्हिच पार्टी? द पार्टी हु हैज अचीव्ड अ मेजॉरिटी. बहुमत सिद्ध होता है इन द जनरल इलेक्शंस, स्पेशली जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस. ही इज अपॉइंटेड फॉर्मली बाय द प्रेसिडेंट. इनको जो प्रोसेस है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उसके अनुसार. The ministers to the cabinet are appointed as per the counsel of the prime minister. प्राइम मिनिस्टर जिन जिन को कैबिनेट मिनिस्ट्री में बिठाना चाहते हैं उस हिसाब से कैबिनेट के मिनिस्टर्स आर गिवन द अपॉइंटमेंट. He distributes the portfolios. In the earlier details, I have told you what does the word portfolios means. I'll just repeat it again. Different type of departments are distributed to these ministers. इन सभी मिनिस्टर्स को अलग अलग फील्ड के खाते दिए जाते हैं. यानी कि कोई एग्रीकल्चर, someone looks after the medical field, someone sports and etc. So they are given the special titles like finance minister, sports minister and etc. They are all called as portfolios in which they are even given the details what they have to do. Any minister either to be taken or to be told to leave the party or left or continued in the cabinet. किसी को अंदर लेना है कैबिनेट में, किसी को छोड़ के जाना होगा या उसी को कंटिन्यू करना है. These all things are decided by the prime minister. He presides over the meetings of the cabinet. Second important factor is whatever meeting is held of the cabinet, he looks after or he conducts the meeting and gives the detail to all the members who are present in the cabinet ministers, and also looks after the functioning of the various departments of the cabinet. He also takes care of is the particular minister of particular department doing his or her work or functioning it properly or not, especially the cabinet ministers who are given the different departments. He takes pivotal decision. कभी कभी उन्हें बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन सबके साथ मिलकर लेना होता है. The prime minister is the head of the planning commission also. सिर्फ कंट्री के हेड नहीं होते हैं बल्कि प्लानिंग कमीशन के भी वो हेड होते हैं, पार्टी के भी हेड होते हैं. सो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन, जिसमें वो प्लानिंग करते हैं और किस तरह से उस प्लानिंग को लागू किया जाना चाहिए, विच इज नोन एज द पॉलिसी कमीशन. और इस प्लानिंग कमीशन को ही पॉलिसी कमीशन भी कहा जाता है. There are three levels of ministers under the prime minister. Understand this very properly. There are three levels or three level of ministers under the prime minister. One, the cabinet ministers. Second, the state ministers. And the third, deputy ministers. Again, I repeat, cabinet ministers at the central level, state ministers at the state level, and helping ministers who are especially supporting the main ministers, they are called as deputy ministers. The prime minister should be a member of any one house of the parliament. Prime minister ऐसे बाहर से कोई भी बनाया नहीं जाता. He or she should be the member of either राज्य सभा और लोकसभा में से किसी एक का वो मेंबर होना चाहिए. The ministers are individually responsible for their ministries and departments. Whoever ministers are there, they are personally or individually responsible for their ministries as well as their different departments in which they are working. अलग अलग departments होते हैं, अलग अलग ministries होती हैं, उसके लिए वो जिम्मेदार होते हैं. So they have to take care very carefully. The Council of Ministers is collectively responsible and accountable to the Lok Sabha.
और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होता है वो सब मिलकर, टोटल मिलके पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अकाउंटेबल टू द लोकसभा आल्सो, और लोकसभा के नियम के अनुसार उन्हें चलना होता है। ओके, जो भी गड़बड़ होगी उनके ऊपर आरोप लग जाएगा। जैसे आगे लिखा है, इफ द लोकसभा रिजेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑन अ पर्टिकुलर इश्यू, अगर लोकसभा किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिजेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर इश्यू को लेकर, इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर फॉर दैट सब्जेक्ट, तब उसके लिए सिर्फ वो मिनिस्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बस कि उसके साथ साथ जो भी बखेड़ा खड़ा होगा, but the whole council of ministers will have to accept the responsibility, and if it is found guilty or wrong, they have to resign from their post. अगर वो गलत साबित होता है तो उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन भी करना पड़ेगा ना। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेवल पर। द फर्स्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट लेवल इज द गवर्नर, लाइक द प्रेसिडेंट। सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट लेवल पर गवर्नर होते हैं। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, किसके बताए जाने पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं। सादी भाषा में प्राइम मिनिस्टर फाइनल करते कि कौन गवर्नर बनेगा। The president can appoint a person as a governor. President किसी व्यक्ति को as a governor appoint कर सकते हैं of more than one state. एक से भी ज्यादा राज्य के वो उसे गवर्नर बना सकते हैं। Any citizen of India who is 35 years of age, कोई भी सिटीजन कम से कम 35 साल या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति होगा, he or she may be appointed as the governor. The term of the governor is for 5 years. गवर्नर का जो पीरियड होता है उस राज्य में एज ए गवर्नर का काम करने का, वो 5 साल के लिए होता है। However, he or she holds office during the pleasure. जब तक पार्टी का बहुमत है तब तक वो उस पोस्ट पर अपना काम करते रहते हैं। मीन्स दैट इज अ प्लेजर। स्पेशली जब तक खुशी से प्रेसिडेंट उनको रखना चाहते हैं तब तक रखेंगे। एंड कैन बी रिमूव्ड आल्सो फ्रॉम ऑफिस, और उन्हें हटाया भी जा सकता है उस ऑफिस में से। कब? इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज और हर टर्म, उनके 5 साल पूरे होने के पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है। और ही और शी कैन आल्सो बी ट्रांसफर टू एनी अदर स्टेट एज द गवर्नर, या फिर उन्हें उस राज्य से गवर्नर की पोस्ट से निकालकर दूसरे राज्य की गवर्नर की पोस्ट दी जा सकती है। लाइक आनंदीबेन पटेल who was declared as a governor, okay, and again she was given the post of the governor from Gujarat and then to yes, Madhya Pradesh. The governor is the constitutional and the formal head of the state. राज्य का constitutional नियम के अनुसार और फॉर्मल टाइप के हेड माने जाते हैं गवर्नर, प्रेसिडेंट की तरह, जो इंडिया के होते हैं और ये स्टेट के होते हैं। All executive powers of the state गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन हिम, पूरे राज्य की संभालने की पूरी ताकत उनके एक्चुअली हाथों में सौंपी जाती है, लेकिन नाम के लिए होता है वो। He appoints the chief minister who has a clear majority. जो भी मिनिस्टर अपॉइंट होगा एज ए चीफ मिनिस्टर, वो क्लियर मेजोरिटी में जीत कर आना जरूरी है, या जीता हुआ व्यक्ति क्लियर मेजोरिटी में जीत कर आया है उस राज्य में, तो उसे चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर दिया जा सकता है। He also appoints other members of the Council of Ministers on the advice of the Chief Minister, and then thereafter, once the Chief Minister is declared, he will decide who will be his or her Council of Ministers. Even he appoints the Advocate General. Advocate General की भी पोस्ट वही भरते हैं, यानी कि गवर्नर फाइनल करते हैं। चेयरमैन भी वही चुनते हैं। The members of the State Public Service Commission, वहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, यहाँ पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। हर राज्य में अपनी अपनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट होती है। He or she is consulted by the President of India for the appointment of the judges of the High Court. कोई भी व्यक्ति हो, प्रेसिडेंट से पहले बात करनी होती है इंडिया के, किस चीज के लिए? For the appointment of the judges of the High Court. Clear? The next,
द गवर्नर हैज सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव पावर्स, गवर्नमेंट के पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की लेजिस्लेचर की मतलब विधानसभा की जो पावर्स होती है वो होती दी जाती है उन्हें. He calls or he summons and prorogues and declares or tries to look after the whole, especially the meeting conducted for the Vidhan Sabha or Legislative Assembly, you can say. So he calls and prorogues the sessions of the state legislature. State legislature को संबोधित करना उसको prorogue कहते हैं. He can dissolve the state assembly before the expiry of its full term. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का फुल टर्म होता है 5 years, उसके पहले उसे वो बर्खास्त कर सकते हैं. गवर्नर हैज दैट मच ऑफ पावर्स टू ओके एनी टाइम स्पेशली डिसॉल्व. ही कैन आल्सो इश्यू ऑर्डिनेंसेस, वो चाहे तो अपनी तरफ से ऑर्डिनेंसेस भी भिजवा सकते हैं जिनमें नियमों का पूरा डिटेल दिया रहेगा. A bill passed by the state legislature can become a law only after the governor assents to it. Same like the central government, president assents the bill. Here the state government, okay, which is trying to frame the law or some kind of a bill is passed. At that time, the governor has to sign it, and then that bill can be declared as a law of that particular state. उस राज्य का वो एक नया नियम बन जाएगा गवर्नर के सही सिक्के के बाद. The position of the governor in a state is similar to that of the president at the center. वही बताया मैंने आपको, बार बार रिपीट किया. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है वैसे स्टेट लेवल पर गवर्नर की पोस्ट इंपॉर्टेंट होती है. His powers are actually like the prime minister is enjoying along with his cabinet ministers. In the same way here also his powers are actually exercised, means are specially enjoyed by the council of ministers who are headed by the चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर और उसके जो मंत्री हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो जैसा बताएंगे वैसे गवर्नर को यस उन चीजों को करना होता है. मतलब असली पावर चीफ मिनिस्टर के हाथों में होती है. बट द गवर्नर कैन एक्सरसाइज सर्टेन पावर्स इंडिपेंडेंटली आल्सो. लेकिन गवर्नर चाहे तो वो कुछ ऐसी पावर्स हैं जो खुद से होकर इंडिपेंडेंटली वो एंजॉय कर सकता है. नॉर्मली the governor of a state is ex officio chancellor of all the universities of the state. एक तरफ वो स्टेट के हेड तो होते ही है लेकिन दूसरी तरफ वो एक प्रकार के एक्स ऑफिशियो पर्सन भी होते हैं, एक प्रकार के चांसलर होते हैं. सभी यूनिवर्सिटीज जो चलती है उस स्टेट में उनके वो मुख्य मेन हेड पर्सन होते हैं, एक्स ऑफिशियो कैरेक्टर होता है. A governor can belong to any political party. गवर्नर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं. बट आफ्टर एज्यूमिंग हिज पोस्ट, लेकिन एक बार गवर्नर अपनी पोस्ट पर एक बार बैठ जाते हैं या उन्हें वो पोस्ट दी जाती है, द गवर्नर हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज फॉर्मली एंड इम्पार्शली, बड़े स्ट्रांग मैनर में और बिना किसी भेदभाव के उन्हें ये ड्यूटी निभानी होती है. ना द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन पर ध्यान दीजिए. कौन कौन होते हैं, कौन कौन से लेवल पर होते हैं. जैसे उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास 3 प्रकार की गवर्नमेंट्स होती है, उसी तरह से चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नीचे भी कौन कौन होते हैं वो चेक कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट. द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर. ओके, द गवर्नर अपॉइंट्स, देन द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर सबसे पहले गवर्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं और फिर गवर्नर बाद में जो मेजॉरिटी पार्टी है जिसमें वो सबसे ज्यादा बहुमत से कोई सिद्ध होकर आया है उसमें से एक नया चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर होगा. इफ नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजॉरिटी, लेकिन कोई भी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी में जीत कर नहीं आई है तो द लीडर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द पार्टीज कंसिस्टिंग द मेजॉरिटी, 2-3 पार्टियां मिलाकर मिक्स करके उनमें से एक लीडर को सिलेक्ट किया जाता है और उसमें से मेजॉरिटी में जिस लीडर को चुनना है वो चुन सकते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर. और द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी हैविंग द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर. या तो फिर एक बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है और उसमें मेजॉरिटी में सपोर्ट मिल रहा है, उसमें से किसी एक बंदे को चीफ मिनिस्टर की पोस्ट दी जाती है.
Other members of the Council of Ministers are also appointed by the governor on the advice of the chief minister. बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी गवर्नर के द्वारा ओके चीफ मिनिस्टर बताते हैं गवर्नर को और उसके हिसाब से गवर्नर बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन ये सब किसके हाथों में होती है? डोर चीफ मिनिस्टर के। ओके, by the governor on the advice of the chief minister, though the administration of the state is carried out in the name of the governor, भले ही एक तरफ गवर्नर के नाम के अड़ चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉयमेंट खास करके पावर्स को यानी कि अपनी पूरी सत्ता का इस्तेमाल वो करते हैं, नाम के लिए गवर्नर रखा जाता है। इन गुजरात the office of the chief minister and the cabinet ministers is situated in the कहां पर situated है इनका मेन ऑफिस? न्यू सेक्रेटेरिएट स्वर्णिम संकुल गांधीनगर, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स का मेन ऑफिस है। विधानसभा है ऐसा मान के चलिए। द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ सीक्रेसी टू द चीफ मिनिस्टर। सीक्रेसी में गवर्नर के सामने ये शपथ विधि की जाती है और गवर्नर चीफ मिनिस्टर की शपथ विधि पूर्ण करते हैं। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओरली, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी ओरली मुंह से बयां करके शपथ लेनी होती कि मैं संविधान के नियम के अनुसार क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा। फिर उस शपथ पर सिग्नेचर्स करनी होती है और जमा किया जाता है गवर्नर के पास। इन द स्टेट कैबिनेट मिनिस्ट्री देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें स्टेट लेवल पर 4 होते हैं और सेंट्रल लेवल पर 3 होते हैं। 1 कैबिनेट, 2 स्टेट लेवल, 3 डेप्यूटी लेवल, 4 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, याद रखना है 4था। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज टू द कैबिनेट मिनिस्टर। वहां पर जैसे पीएम करते हैं, यहाँ पर स्टेट में चीफ मिनिस्टर इज प्रोवाइडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द पोर्टफोलियोज टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट होगा। ही ऑल्सो प्रेजेंट्स द इश्यूज ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। ओके, और एक चीज भी काम करते हैं वो कौन सा? ही ऑल्सो प्रेजेंट्स द इश्यूज ऑफ पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग के इश्यूज को भी वो सामने रखते हैं। देन ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पारदर्शक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन क्वेश्चंस ऑफ पीपल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का यानी लोगों का जो सवाल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रखने का काम भी चीफ मिनिस्टर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलेमिटी, जब कोई आपत्ति आती है, संकट आता है, ही प्रोवाइड्स बेसिक एमिनिटीज, लव एंड केयर टू द पीपल। उस वक्त आमतौर पे लगने वाली चीजों का खास करके योगदान गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। बहुत सारा प्यार लोगों के बीच में बांटना होता है, लोगों की फिक्र करना उनके अंदर बना रहना जरूरी है। ही प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू द स्टेट लेजिस्लेचर। वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप तैयार करते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द टॉर्च बेयरर एंड पाथ फाइंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। चीफ मिनिस्टर जो है वो एक प्रकार के मुख्य व्यक्ति होते हैं, टॉर्च बियरर होते हैं, और रास्ता ढूंढने का काम भी वही करता है। कोई भी समस्या है उसका रास्ता ढूंढते हैं। ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेट आल्सो, और डेवलपमेंट कैसे होगी अपने राज्य की, इसका खास ख्याल वो रखता है। नाउ कमिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स कौन चुना जाता है, कहां से चुनते हैं, ये ध्यान से चेक करना। बिल्कुल चीफ मिनिस्टर की तरह ओके और मिनिस्टर्स की तरह एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है और उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स अलग अलग होते हैं। द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड्स। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो अलग अलग पॉलिसीज को तैयार करते हैं। ओके, अलग अलग फील्ड में, जैसे एग्रीकल्चर में, मेडिकल में कि ऐसा करो वैसा करो ये करो वो करो, लेकिन वो सब कुछ करने के पहले उसको
डिक्लेयर करने का काम कौन करता है, सो वो इंपॉर्टेंट है। द डिटेल्ड एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज पॉलिसीज, पूरी तरह से पूरे डिटेल्स में और एकदम एफिशिएंट मैनर में, अप्रोप्रिएट मैनर में इसको लागू करने का काम, इन पॉलिसीज को, इज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। जैसे कि कोई क्लास 1 कमिश्नर है, क्लास 1 ऑफिसर है, उनके हाथों में ये डिटेल्स दी जाती है और फिर उसके ऊपर वो स्टडी करके वो नियम बनाकर लागू करता है। The administrative executive advises and guides the state executives in the matters of the policies. एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, वो अपनी तरफ से सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं टू द गाइड्स टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव्स को वो बताते हैं इन द मैटर्स ऑफ द पॉलिसीज, पॉलिसीज के मामले में पूरी डिटेल्स वो समझाते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर्स, और इसके साथ साथ वो लगने वाली इंफॉर्मेशन जो जरूरी है और जो भी फिगर्स है, जो भी खर्चे होंगे वगैरह वगैरह, जो भी कामकाज होगा, कितना जमीन लगेगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ डिसाइड होता है। However, the political executive is not bound to follow the advice of it. लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वही करे जैसा उन्हें करने को कहा जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। No matter how important or welfare oriented are the policies, laws, if they are not effectively implemented by the administrative executive, एक बात बहुत जरूरी है, आप कितने भी इंपॉर्टेंट और मे बी welfare oriented for the betterment of the people, whatever policies are framed, whatever laws are framed, but if they are not effectively implemented, if they are not put into the action in a proper way by the administrative executive, then its purpose is mad. Means the main purpose behind such kind of policy, its importance, its welfare is not that much appropriate. So the purpose should be accomplished when these kind of policies are implemented by the administrative executive. Thus, the administrative system provides the necessary backup to the executive in the formation and implementation of the policies. And therefore, one thing is very important. What is it? Administrative system, whatever administrative system is there, it tries to provide करने का काम होता है the necessary backup, the necessary specially important type of advices, suggestions to the executive, especially when executive is trying to find out the correct way of formulation and implementation of the different policies. Expect the following matters, okay, which are mentioned according to the constitution. The next point is expert and professionally efficient and experienced public servants in the field of the foreign relations, in the field of the defense, then security or security forces, international trade and commerce, then nuclear energy, then even the common type of the energy matters, then the different type of the productions of the different products, distribution, banking sectors, insurance, foreign exchange, and the most important is the experts and the professional, efficient and experienced public servants. These people must be there to take the decision in all the different policies, and therefore they are the backbone of the government. Therefore these people are said to be the backbone of the government. Then next is collector is appointed as an administrative head at the district level. वापस बोलता हूँ, कलेक्टर जो होता है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुना जाता है। एक्चुअली वो एक एग्जाम पास होता है जिसे हम जीपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके ही वो उस पोस्ट पर सिलेक्ट होता है। एंड इस ऑफिस इज एट जिला सेवा सदन, और इनका जो ऑफिस होता है कलेक्टर का, दैट ऑफिस इज कॉल्ड एज अ जिला सेवा सदन। देयर एक्सपर्टाइज नॉलेज, यहाँ पर एक्सपर्ट्स का
जो एप्रोप्रिएट नॉलेज है, देन एडमिनिस्ट्रेटिव इनसाइट, हर एक प्रकार का इनसाइट होना बहुत जरूरी है। क्या परिणाम होगा, which policies to be implemented, what will be its effect, what will be drawbacks, and everything is decided in a very broad experience sense. Then prediction, what can be the outcome of the policy का outcome क्या होगा. Then administrative efficiency helps them to carry out the administration effectively, and all these things, especially all together with the administrative efficiency, will help all of them to carry out the administration in a very powerful manner. The next point is, from the organs of the government, जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, the state executive acts, स्टेट एग्जीक्यूटिव जो होता है बिल्कुल किस तरह से काम करता है पता है. गवर्नमेंट एक बॉडी है, एक ऑर्गन है, और उस ऑर्गन के अंदर एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव ब्रेन की तरह काम करता है, एज अ ब्रेन बिहाइंड द बेटरमेंट ऑफ द पीपल. लोगों की भलाई के लिए ये स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के शरीर के अंदर, यानी कि गवर्नमेंट एक बॉडी है ऐसा मान के चलो, उसका एक अंग है स्टेट एग्जीक्यूटिव जो दिमाग की तरह काम करता है. Whereas the administrative executive is like the limbs. लेकिन स्टेट एग्जीक्यूटिव के अलावा हाथ पैरों का क्या होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बिल्कुल हाथ पैर की तरह काम करता है, आगे काम को बढ़ाने का काम करता है. दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो क्या मतलब है. तो हाथ पैर का काम एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव करते हैं. तो ये स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर ये शरीर काम करेगा. An amicable relation between the political executive and the administrative executive is a prerequisite for the smooth governance of the state. सादी भाषा में, घर के अंदर मम्मी पापा को समझे, पापा मम्मी को समझे, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में होना जरूरी है, तब जाकर गवर्नमेंट अपने राज्य को स्मूथ मैनर में चला पाएगी. The next point is, the power and influence of the government is becoming more centered in the bureaucracy. जो पावर होती है और उसका जो असर होता है गवर्नमेंट का, वो क्या बनता जाता है, is becoming more centered in the bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी में वो ज्यादा सेंट्रल लेवल पर या ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है. नेपोटिज्म, ये शब्द बहुत जरूरी है. नेपोटिज्म क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि अपनों को ही काम मिलना चाहिए और अपनों को ही हम अपने समझकर उनको काम सौंपें, तो बाकी दुनिया का क्या होगा, बाकी लोगों ने क्या गुनाह किया था. तो इसका विरोध अगर आप करते हैं तो इसको, खास करके इस प्रोसेस को नेपोटिज्म कहते हैं. आप एक तरफा ही अपने ही समाज, अपने ही रिलीजन, अपने ही लोगों के बारे में सोचते हैं. सेकंड, करप्शन. करप्शन एक बहुत बड़ी दिमाग की तरह खोखला करने वाली चीज है. डिसऑनेस्टी, ईमानदारी न होना, इनएफिशिएंसी, आपके अंदर वो ताकत ना होना या काम करने की वो जिज्ञासा ना होना. मिसकंडक्ट, अच्छा सा बिहेवियर ना होना. देन एस्केपिज्म, किसी बात से दूर भागना, एस्केप होने की कोशिश करना. These are all the evils of bureaucracy. और ब्यूरोक्रेसी की ये सबसे गंदे कारनामे हैं, सबसे खराब राक्षसी बुद्धि के या फिर एकदम इविल टाइप की एक्टिविटीज है. सो टू कंट्रोल सच इविल्स, इन सभी इविल्स को कंट्रोल में अगर लाना है, इन सभी ब्यूरोक्रेटिक्स को कंट्रोल में लाना है, तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी है. वन, लोकपाल और लोकायुक्त इज नीडेड. लोकपाल और लोकायुक्त ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जिनके थ्रू हम किसी भी अन्याय को रोक सकते हैं. टू स्टॉप द करप्शन, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एन एंटायर सेपरेट डिपार्टमेंट बाय द नेम ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो. वो तो हर राज्य में होता है एक्चुअली, बस
हम गुजरात में पढ़ रहे इसलिए वो गुजरात का डिटेल दिया हुआ है, एक्चुअली इंडिया लेवल पर भी होता है। और ऐसी कोई भी any type of the corruption if you see, especially in the Gujarat state, one separate department is there which is called as a anti-corruption bureau. Its toll free number is, उसका टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है 1800-2334-4444। ये एंटी करप्शन ब्यूरो का नंबर है जिसमें आप फोन करके बता सकते हो कि ये व्यक्ति ने इस ऑफिस में इस तरह से पैसे खाए वगैरह वगैरह, कंप्लेन कर सकते हैं। पीपल कैन कॉन्टैक्ट द नंबर टू फाइल देयर कंप्लेंट्स, वही लिखा है मैंने, वही पढ़ा है आपके सामने। पीपल कभी भी, यानी कि लोग कभी भी अपनी कंप्लेंट्स इस नंबर पर दे सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द टुडे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम as there is a government comprising of different political parties. Political stability होना जरूरी है। स्टेबिलिटी मतलब कॉन्स्टेंटनेस, वो पार्टी चलती रहे, स्टेट में कोई वाद विवाद ना हो, स्टेट अच्छे से रन करें, स्मूथ मैनर में काम करें। और ये तब होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जब गवर्नमेंट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर उस राज्य को चलाएगी। लेकिन यहाँ पर खींचातानी होने की वजह से हम ये करेंगे, आप वो मत करना, आप वो मत करना, हम ये करेंगे, ये सब गड़बड़ी का बाजार है। और इसलिए वो स्टेट के अंदर कॉमन मैन जो है वो बेचारा बहुत बुरी तरह से पिसा जाता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डगमगा जाती है। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हेल्प्स टू एक्सेल द डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय इंप्लीमेंटिंग वेरियस डेवलपमेंटल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम राज्य को अच्छे से चलाने के लिए डेवलपमेंट की स्कीम्स लाता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जाती है, और उन्हें लागू किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनकी डेवलपमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स के थ्रू। और इस तरह से उस स्टेट को अच्छे से चलाया जाता है। इन द नेक्स्ट सेशन और इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट विथ गवर्नेंस एट द लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पढ़ लिया, स्टेट लेवल पढ़ लिया, लेकिन छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, यहाँ तक कि ऐसे कुछ गांव भी हैं कि जिनमें कोई सरपंच ही नहीं है, गांव के लोग ही उसका देखभाल करने का काम करता है। और ऐसे पूरी डिटेल्स हम अगले वीडियो में चेक करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।